अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद प्यारे बच्चों। आज की मेरी वीडियो है 7वीं जमात के लेसन द ओलंपिक चैम्पियन एंड द डक्स के सॉल्यूशंस। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हैं यहाँ पर कॉम्प्रहेंशन। तो हमें सवाल दिया गया है नीचे, उनमें से 3 जवाब दिए गए हैं और सही जवाब को हमें राइट मार्क का निशान लगाना है। नंबर 1, बॉबी वॉज एन ऑस्ट्रेलियन। नंबर 2, बॉबीज फादर वॉज अ rowing champion. Number 3, Bobby slowed his boat down because he wanted to save the ducklings. Number 4, Bobby is that kind of a bloke. This was said by Bobby's friends. नेक्स्ट एक्टिविटी है यहाँ पर बॉबी पियर से ताल्लुक़ रखने वाली। बेस्ड ऑन द लेसन फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। हमें क्या करना है, बॉबी के बारे में सही मालूमात को उन खाली जगहों में भरना है। नीचे हमारे लिए यहाँ पर इशारे दिए गए हैं। नंबर 1, सेव द लाइव्स ऑफ डकलिंग्स। नंबर 2, बॉबी पियर्स वॉज बोर्न इन सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया। नंबर 3, बॉबी पियर्स वन मैनी टाइटल्स। नंबर 4, बॉबी पियर्स स्टार्टेड रोविंग एट द एज ऑफ 5. Number 5, Bobby Pierce competed in the Olympic Games at the age of 6. Number 6, Bobby Pierce competed in the Olympic Games against 14-year-olds. तो इसमें सही जवाबात आपको दिखाई दे रहे होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर सवालात के जवाबात की ओर। तो चलिए देखते हैं इसके जवाबात क्या होंगे। How did Bobby become interested in rowing? Answer is, when Bobby was 5, he was rowing around the Sydney harbour in a small boat. At the age of 6, he won his first race competing against 14-year-olds. Question number 2. What instances in the lesson will tell you that Bobby was interested in rowing right from his childhood? Answer is, when Bobby was 5, he was rowing around the Sydney harbour in a small boat. At the age of 6, he won his first race competing against 14-year-olds. These sentences in the lesson will tell us that Bobby was interested in rowing right from his childhood. Number 3, Bobby slowed down his boat during the rowing race to save the ducklings. What quality or qualities of Bobby do you admire? Answer is, Bobby slowed down his boat during rowing to save the ducklings. We admire the qualities of Bobby to give first preference for the lives of ducks instead of his rowing, especially in Olympic Games, and his special care for ducks and brood of ducklings. नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे लिए, यहाँ पर खाली जगहों को हमें भर्ती करना है। जवाबात हमें डिब्बे में दिए गए हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेजेस बाय फिलिंग इन द राइट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स whenever necessary. An example is given. तो मैं जवाबात पढ़ते हुए जाती हूँ। राम has a boat, he rows it. His brother has a motorbike, he rides it. His sister has a car, she drives it. His father is a pilot, he flies an aeroplane. And his servant has a cart and he draws it. Number 5, complete the following sentences by choosing right words given in brackets. यहाँ पर भी हमें सही जवाब को चुनकर खाली जगहों को भर्ती करना है। ए, आई हैव टू वेट इन अ क्यू टू चेक माई वेट। बी, माई ब्रदर वन मेडल्स इन स्कूल स्पोर्ट्स, 2 gold and 1 silver. Number C, ear checkup camp is held every year in my school. D, my mother stood by the road to buy vegetables. नेक्स्ट है लैंग्वेज एक्टिविटी, और हमें कलेक्टिव नाउन्स को खाली जगहों में भर्ती करना है। A class of students was waiting for the teacher. B, a herd of elephants was eating sugarcane. 3, I met an army of soldiers in Kashmir. Number 4, a flock of sheep was grazing in the field. Number 5, my father kept a bunch of keys on the table. इसी तरह अगली एक्टिविटी है, यहाँ पर हमें एक तस्वीर दी गई है। तस्वीर में हमें तस्वीर को देखकर आगे खाली जगहों में जगह भर्ती करनी है। तो जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। द टीवी इज़ ऑन द डेस्क, द बॉय इज स्टैंडिंग नियर द टीवी, द वाटर इज़ इन द जग, द फ्रिज इज़ बिसाइड द डोर, द सोफ़ा इज़ बिटवीन फ्रिज एंड द बॉय, द पेन इज़ अंडर द सोफ़ा। डी में है स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पर हमें सिर्फ बोलना है, लिखना ज़रूरी नहीं है।
तो मैं सीधे अगली एक्टिविटी की तरफ आती हूँ। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है जहाँ पर सचिन तेंदुलकर जो है अपने बारे में बताते हैं, तो उसके ताल्लुक से सवालात है। तो चलिए देखते हैं इसके जवाब क्या होंगे। हु इज़ द स्पीकर? आंसर इज सचिन तेंदुलकर इज़ द स्पीकर। नंबर 2, विच स्टेट डज ही बिलोंग टू? आंसर इज ही बिलोंग्स टू द महाराष्ट्र स्टेट। Number 3, what game did he play? He played cricket. Number 4, at what age did he begin his international career? Answer is, he began his international career at the age of 16. Number 5, what was the award given to him? Answer is, Bharat Ratna was the award given to him. राइटिंग में एक और एक्टिविटी है, यहाँ पर ओलंपिक का निशान दिया गया है, इसके ताल्लुक से सवालात के जवाबात हमें लिखने हैं। तो मैं सीधे जवाबात की तरफ आती हूँ। नंबर 1, हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन द सिंबल? आंसर इज देयर आर 5 रिंग्स इन द सिंबल। नंबर 2, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स डज ईच सर्कल रिप्रेजेंट? आंसर इज ईच सर्कल रिप्रेजेंट्स 1 कॉन्टिनेंट। नंबर 3, विच कॉन्टिनेंट डज योर कंट्री बिलोंग टू? Answer is, our country belongs to the Asian continent. Number 4, what do you understand by the symbol? Answer is, we understand by the symbol that all the continents are united together and it symbolizes worldwide unity and all the countries are equal in the Olympic Games. Number 5, which of the following proverbs best describes the above symbol? Answer is, united we stand, divide we fall. प्रोवर्ब इज़ द बेस्ट टू डिस्क्राइब द एबो सिम्बॉल। लास्ट वाली एक्टिविटी की तरफ आते हैं। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है स्वामी विवेकानंद के बारे में, उसी के ताल्लुक से नीचे हमें क्या करना है, खाली जगहों में भर्ती करना है। तो चलिए देखते हैं इसके जवाब क्या होंगे। स्वामी विवेकानंदा नरेंद्रनाथ, फादर विश्वनाथ दत्ता, भुवनेश्वरी देवी मदर, स्वामी विवेकानंदा लर्न पुराणास फ्रॉम मदर, Swami Vivekananda's guru was the Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna his teacher, playing sports, singing, meditation. तो प्यारे बच्चों, ये थे इसके जवाबात। इसको अच्छी खुशखत के साथ लिखें और अच्छी तरह पढ़ाई करें। अल्लाह हाफिज़।